factor analysis technique. Factor analysis है, it's a data reduction technique, right? So कैसे? Let me take you to an example. Okay, so this is first of all, let me open a new file. Okay, what is the topic? Exploratory factor analysis. So this is the topic that we are going to do today. ये कब यूज होता है? When do we use it? When we are talking about primary data analysis. So what is a primary data analysis? Primary data analysis is when we make a questionnaire. When we make a questionnaire and collects information for the first time. So in that case, EFA is one of the techniques of data analysis. EFA is one of the techniques of data analysis. Please understand this thing. What is EFA? EFA कहाँ पर यूज होता है? EFA होता है जहां पर आपने प्राइमरी डेटा को एनालाइज करना है, राइट? तो उसमें एक टेक्निक है, जैसे कल हमने किया, वी टॉक्ड अबाउट टी टेस्ट, वी टॉक्ड अबाउट अनोवा, वी टॉक्ड अबाउट काई स्क्वायर, नहीं किया, बट दीज आर द टूल्स, राइट? इसी तरह से EFA भी एक टेक्निक है जो कि प्राइमरी डेटा को एनालाइज करती है. इट इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ डेटा एनालिसिस, प्राइमरी डेटा एनालिसिस. इट इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ प्राइमरी डेटा एनालिसिस, राइट? तो इसमें करते कैसे हैं? सो हाउ डू वी यूज इट नाउ? सो वी यूज इट like, let me take you to a questionnaire. This is a questionnaire of one of my student. She has completed PhD with me. So ये उसका है. Let me take you to her questionnaire. This is her questionnaire. एक मैं इसका font size बढ़ा दूं मैं, एक मिनट. ओके, तो ये आप देख सकते हैं. दिस इज अ क्वेश्चनर ऑन वर्क लाइफ बैलेंस. ये जो इसका टॉपिक था, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हुज टॉपिक वाज ऑन वर्क लाइफ बैलेंस. सो दिस इज द normal questions that we have taken from the respondents. These are the demographic profile of the respondents. I think you can see the questionnaire, each one of you. Are you able to see this properly? I have increased the font size, right? So this is the demographic profile of the respondent, right? तो उसके बाद there are certain set of questions in which we have taken on a scale. ये वाला जो है, just look at this. These are some of the questions. This is on a 5-point Likert scale. Can you see to this? ये जो questions अब मैं I am taking to you a set of questions that is on a 5-point Likert scale. ये आप देख रहे हैं. This is personal factors. इसका जो था, this is questions on personal factors, like in most areas my life is close to my ideal. How the respondent has to respond? It has to respond on the 5-point Likert scale. तो 5-point Likert scale क्या है? This is the 5-point Likert scale. मतलब यहाँ पर मैंने ये दी स्टेटमेंट और उसके आगे ये दे दिए, सबके आगे. तो पर्सन को इसमें से टिक करना है 1 to 5 में से, ठीक है? तो जब भी आप स्ट्रांगली डिसएग्री, जो नेगेटिव देते हैं, हम हमेशा उसको 1 से स्टार्ट करते हैं, राइट? ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप 5.7 पॉइंट लिकर्ट स्केल लेते हो तो उसको 1 से स्टार्ट करना होता है. तो यहाँ पर भी मैंने कैसे स्टार्ट किया? 1 से. स्ट्रांगली डिसएग्री को कैसे किया? 1 से. 2 को डिसएग्री, फिर न्यूट्रल, फिर एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री. सो दिस इज द वे आई हैव स्टार्टेड. एंड जो फर्स्ट फैक्टर,
अब प्लीज ये ध्यान से सुनना जो मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्टर, राइट, पर्सनल फैक्टर। तो ये एक फैक्टर्स है जिसके नीचे स्टेटमेंट्स हैं, राइट, ये एक फैक्टर है, इसके नीचे स्टेटमेंट्स हैं। एक बार आई वांट ईच वन ऑफ यू टू रीड इट। ये पर्सनल फैक्टर डिफाइन करते हैं कि एक पर्सन, ये ऑर्गेनाइजेशनल, ये जो क्वेश्चनर है, दिस क्वेश्चनर इज रिलेटेड टू द विमेन है ना, एंड उसकी वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर क्वेश्चंस हैं। सो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने क्या लिया है इसके अंदर, पर्सनल फैक्टर। सो दिस इज द पर्सनल फैक्टर्स क्वेश्चंस। let me take it, let me write it here. ये this is the first factor, नाम के first factor का, that is the personal factor. What is the second factor? family factors. family factors मैं इसको ले रही हूँ ऊपर। What is the second factor? second factors की अब क्या statements हैं, that is what we have to see, right? So again, this is your second is your family factor. How does your family supports you, right? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने रिस्पोंडेंट से पूछे हैं 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे, राइट? तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस, राइट? तो एक मिनट, these are some of the questions on the 5 point Likert scale, right? ठीक है, तो आप व्हाट इज इंपॉर्टेंट आप ये देख रहे हो, पहला क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर, पर्सनल फैक्टर्स, उसकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, राइट? सेकंड फैक्टर क्या है, फैमिली फैक्टर्स, उसकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद थर्ड फैक्टर क्या है, इसमें मैंने 4 फैक्टर लिए हैं, 3 or 4, let me check. So this is the another factors, that is organizational factors. Let's say these are the organizational factors. This is my next factors, that is called as organizational factors, right? So उसके statements आगे ये हैं, right? एक और, let me check. Affective commitment. Last जो हमने क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं, that is on affective commitment towards an organization, right? So look at this. Now just have a feel of it. Next set of questions है affective commitment. ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये जो हमने क्वेश्चंस फिल कराए, ये किससे कराए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की विमेन से। तो हम ये देखना चाहते हैं कि उनके जो पर्सनल फैक्टर है वो कितना सेटिस्फाइड है, फैमिली फैक्टर्स, उनको जो फैमिली है उनका कितना सपोर्ट करती है, क्या पर्सनल फैक्टर्स में हम ये देखना चाहते हैं क्या वो अपने आप से टाइम स्पेंड कर सकती हैं, अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर पा रही है, पर्सनली हाउ हैप्पी दे आर। फैमिली फैक्टर्स, फैमिली उनको कितना सपोर्ट करती है। उसके बाद है थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स, कि ऑर्गेनाइजेशन उनको केयर करती है कि नहीं करती, और उसके बेसिस पे अफेक्टिव कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने अच्छा स्केल्स उठा लिए हैं। अच्छा, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फैक्टर एनालिसिस कर रहे हो, लेट मी टेक यू टू दैट। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये हमने अपने आप से नहीं बनाई है, दिस इज व्हाट वी हैव नॉट टेकन, राइट? तो हमने क्या किया इसको, ये ऑलरेडी किसी ने, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज स्केल डेवलपमेंट। आर यू पीपल अवेयर ऑफ दिस? ये आपको पता है कि स्केल डेवलपमेंट क्या होता है? हाँ जी, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू नो दैट। व्हाट डू यू मीन बाय स्केल डेवलपमेंट? ओके ओके, तो अच्छा, ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ये देखो, ये सारे जो पर्सनल फैक्टर से क्वेश्चंस लिए, ये मैंने खुद नहीं बनाए, आई हैव नॉट मेक दैट, राइट? फैमिली फैक्टर्स के भी क्वेश्चंस मैंने खुद से नहीं बनाए, आई हैव टेकन इट फ्रॉम द पर्सन जिसने इसको प्रूव किया था। और किसने किया था, ये लुक एट दिस, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट दिस इनटू योर पेपर, दिस इज द मेजर्स। ये एक रिसर्च मेथोडोलॉजी जब आप लिखते हो अपने पेपर में, इफ यू आर राइटिंग अ पेपर और अ थीसिस, तो अगर आपने इस तरह से कोई फैक्टर्स उठाए हैं ना, कोई मॉडल बनाया है,
तो उसके अंदर ये जो स्केल है, ये देखो, सेटिस्फैक्शन विद लाइफ स्केल, फैमिली सेटिस्फैक्शन, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट स्केल एंड इफेक्टिव कमिटमेंट। ये आप खुद नहीं बनाते हो अपने आप से कि खुद अपने स्टेटमेंट्स को डिजाइन किया और किसी से भी पूछ लिया, नहीं। जिस बंदे ने इस पेपर पे ऑलरेडी काम किया है और ये स्केल आपको दिया है विद देयर स्टेटमेंट्स, ये वो स्केल्स हैं जो आपको उठाने हैं। लेट मी टेक यू टू दिस अफेक्टिव कमिटमेंट का स्केल, हम उठा के देख सकते हैं। ये बहुत कॉमन स्केल है एलन एंड मेयर का। दिस इज, लेट मी चेक, नीचे भी होगा ये अफेक्टिव कमिटमेंट का एलन एंड मेयर का स्केल। लुक एट दिस, ये मैंने एक मॉडल बनाया इसके अंदर, है ना। तो ये चेक किया इसके अंदर कि ये जो फैक्टर है, सेटिस्फैक्शन विद लाइफ स्केल, फैमिली सेटिस्फैक्शन, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, डज इट लीड्स टू अफेक्टिव कमिटमेंट और नॉट, राइट। ये हमने क्या लगाया इसमें, इसमें हमने लगाया अमोस, है ना। ये लास्ट स्टेप है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं, कि ये सारे के सारे इसकी जो ये स्टेटमेंट्स हैं, ये इसमें फिट हो रही हैं कि नहीं। सो दैट फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज EFA, दैट इज एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, है ना, ये किसी बंदे ने, किसी पर्सन ने अपने पेपर में दी थी और सारी फिट हो रही थी उसके पेपर में। तो हमने ये देखना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की विमेन में, क्योंकि मेरा जो पेपर है वो किस पे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की विमेन पे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की वुमेन पे audible. हाँ जी, Ma'am, your एक voice is not audible. एक मिनट सर, एक मिनट दो मेरे को। आप सुनाई दे रही है? हाँ अभी आ Can रही you- अच्छा, तो इसके अंदर हमने क्या करना है बेसिकली, इसमें हमने ये देखना है, इसमें हमने ये देखना है कि ये जो मैंने फैमिली फैक्टर्स लिए हैं, है ना, ये किसी और की, ये जो फैमिली फैक्टर्स थे, ये किसी और ने जो स्केल दिए उसके ऊपर फिट हो रहे थे सारे। हमारे वाले पेपर में, हमारे वाले कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो विमेन हैं, उनमें कौन सा ये फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स एप्लीकेबल है। कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं एप्लीकेबल और कुछ ना हो। तो हमने एक्सप्लोर करने फैक्टर्स, हेलो सॉरी हेलो स्टेटमेंट्स। हेलो हाँ जी, मैडम, इसका ऑब्जेक्टिव दिखाना, ऑब्जेक्टिव कहाँ है इसका, प्लीज उसके हिसाब से देखेंगे ना इसको कैसे किया है। मतलब वो एक बार क्या हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं, रिसर्च क्वेश्चन क्या है हमारा एक्चुअली। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो डिफरेंट, सबसे पहले हमारे ये जो पर्सनल फैक्टर्स है ना, ये जो स्केल है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर का जो स्केल है, उसके बाद फैमिली सपोर्ट का जो स्केल है, फैमिली सपोर्ट का जो स्केल है, और उसके बाद अफेक्टिव कमिटमेंट, है ना। तो क्या ये स्टेटमेंट्स जो और लोगों ने दी हैं, ये स्केल्स हैं जो हमने उठाए, ये चार फैक्टर्स हैं, इनकी आगे स्टेटमेंट्स हैं। ये चार फैक्टर्स हैं, इनकी आगे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो हमारे वाले में वो क्या फिट बैठती हैं। अगर मैं इसको कोऑपरेटिव विमेन से भरवाऊं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की विमेन से भरवाऊं इसको, तो उनमें से ये कौन कौन सी इसमें जस्टिफाई हो रही हैं। अगर पर्सनल फैक्टर्स, मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की विमेन हैं, क्या वो खुश हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, ये स्टेटमेंट्स उसको बता रही हैं। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू चेक, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हमारे को एप्लीकेबल है और कौन से स्टेटमेंट्स को हमने डिलीट करना है। और कौन सी स्टेटमेंट, मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की विमेन है उनके पर्सनल फैक्टर में हाउ हैप्पी दे आर पर्सनली, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें इस पर्सनल फैक्टर को लिंक करेगी। आर यू गेटिंग मी? हाँ जी, Yes, ma'am. One question. जी, हाँ Yes, जी, बोलो ma'am. बोलो। जो फैक्टर्स लिंक करेंगे तो वो उनका फिर पॉजिटिव रिलेशन होगा उनके साथ में। जी, फैक्टर्स नहीं, एक चीज और, ये फैक्टर्स तो ये हैं, इनकी आगे स्टेटमेंट्स, हर की जो ये स्टेटमेंट्स मैंने दी हैं, हाँ। ये जैसे 5 स्टेटमेंट है फर्स्ट फैक्टर की, ये 5 स्टेटमेंट्स में से कितनी एप्लीकेबल हो रही हैं टू द पर्सनल फैक्टर। कुछ डिलीट भी हो हाँ, सकती हैं, उनका कुछ फिर रह भी पॉजिटिव सकती रिलेशन हैं। होगा ना उनके साथ में। हाँ जी, मतलब उनका फिर जिनका होगा वो पॉजिटिव रिलेशन होगा हाँ और जिनका नहीं हाँ होगा हाँ वो नेगेटिव रिलेशन होगा हाँ उनके हाँ साथ। हाँ हाँ। मतलब Madam, इसको कितना madam, एक्सप्लेन कर पा रही है। हाँ her जी, story is connected with this personal factor being
latent variable, it cannot be observed directly. So it can be analyzed. It can be studied only through indicator variables. So A1, A2, A3, A4 are indicators. The purpose of indicators is to measure the effect of personal factor. Am I right? Yes, yes, this is what I'm saying. Yeah. Ki these statements, how many of the statements are related to the personal factor with respect to the cooperative societies women? The scale has already been developed. Just try to understand. Ye jo statements that I have taken, I have not made these statements of my own. Somebody, some person who has already designed a paper and he has given a paper with these statements. I have taken those statements and tried to see what are the statement, how many statements are linked to my cooperative societies women, how many of the statements are linked to this personal factor, how many statement in family factors is linked to the family support scale. Has you got this point? Have you got this point? Is this clear? These 5 factors are highly correlated to the latent variable personal factor. This is what somebody has already given. Like he is saying this. We are not saying this. We will say only when it will be justified in our paper. The scale has been given by Diner. I was trying to show you. Let me show you one scale. Just wait. मैं वही देख रही थी, एक मिनट रुको. Let me show you what I was trying to tell you. Excuse me, ma'am. हाँ जी, ये रहा scale. हाँ जी. Ma'am, these scales can be modified according to our topic of research. No. आप उसको delete कर सकते हो कुछ statements को, but you cannot modify them. You Okay. have to take whatever it is there. Ma'am, this seems to me a psychological research paper. Like if we Yes. are doing in finance, then the questions हाँ. would be very different. Finance नहीं, this is basically HR. Yes, ma'am. This is HR. This is used in HR paper. Look Okay. at this. Yeah. So this is already a person who has already made the scale. This is the base paper. Look at this. Allen and Mayer. They have given this paper of 18 pages. है ना? They have given these statements. Look at this. ये आप देख रहे हैं सभी? Madam, will you please share this PPT? Yes, I'll do that. ये look at this. इन्होंने देखो, approximately 500 questionnaires were distributed to employees in clerical, supervisory and managerial position at these organizations. Females थी इतनी वो थी, और इनके results scale development का paper है. Look at this. This paper is called as the scale development paper. ये देखिए. This is, look at this. I would be very happy to spend the rest of my life with this organization. I enjoy discuss. This is the statements this person, Allen and Mayer, has given it to us. And this is what I have taken. And I want to see how many of the statements are fitting into my personal factors for the cooperative women's societies. How many, similarly for the family factors, how many statements for the family support scale is fitting to this organizational and affective commitment similarly. I hope this point is clear to all. Yes, ma'am. One question. Hmm. Yes, ma'am. For different disciplines, there are different statements for the. No. Are there? No. नहीं, अगर आपको अफेक्टिव कमिटमेंट लेना है तो वो यही स्केल आप लेंगे. एलन एंड हाँ नहीं, मतलब अफेक्टिव कमिटमेंट में और भी for humanities, social sciences, and for all the different streams, there are different statements, na? साइंस के लिए इट मस्ट बी डिफरेंट, बट ये मतलब फॉर द मैनेजमेंट अगर आप हैं स्टूडेंट तो मैनेजमेंट के लिए इसमें और भी हैं, डिफरेंट ऑथर्स हैं जिन्होंने और भी स्केल्स दिए हैं. Allen and Mayer is one of the person who has given scales on affective commitment. There is another person also who has given the scale on affective commitment. So that almost remains the same. इसमें इतना फर्क नहीं होता है. हाँ, कुछ चीजों में आपको मिल सकता है. बट जैसे अफेक्टिव कमिटमेंट है ना, उस पे ऑलमोस्ट सेम ही होता है ये. Are you able to understand? Yeah. Okay, ma'am.
And how Ma'am, this is there is, any ma'am, scale how, for invest? हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? yes, ma'am, and how this is used with the help of SPSS? I'll be telling you right now. अभी तो आपको मैं बेसिक्स बता रही हूँ ना. Okay. This is what is important because अगर बेसिक्स समझ में नहीं आएंगे तो you will not be able to understand, है ना? So when you are Ma'am, writing, I'm also having a question. Is there any scale like this for investors' preference? इन्वेस्टर प्रेफरेंस का तो कोई स्केल वो देखना पड़ेगा. आई हैव नो आइडिया, आई नीड टू चेक दैट. आप Okay. इस पे टाइप करके देख लो स्केल ऑन इन्वेस्टर प्रेफरेंस. इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस पे स्केल कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टर प्रेफरेंस पे कैसे स्केल हो सकता है? कुछ और इसको थोड़ा सा वो करो ना. इन्वेस्टर प्रेफरेंस पे Okay. स्टडी ऑन द बिहेवियर ऑफ द इन्वेस्टर. कुछ आपने इन्वेस्टमेंट बिहेवियर हो सकता है या फिर इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस हो सकता है. हाँ बिल्कुल. और इसके अंदर व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पर ना आप लिख सकते हो स्केल ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर परसेप्शन टुवर्ड्स बॉन्ड. ये देखो, ये भी है, देख रहे हो? स्केल Ma'am. ऑन इन्वेस्टर परसेप्शन टुवर्ड्स ग्रीन बॉन्ड्स. ये आप डाल के देखो तो आपको नंबर ऑफ पेपर्स आएंगे, तो उसमें से अपना जो पेपर आपको सूट करे वो आप ले सकते हो. Okay, ma'am. हाँ, तो नॉर्मली आप वही ये स्टेटमेंट्स वगैरह वही उठाते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती हैं. आप अपने आप से नहीं बना सकते हो. अगर आपको ए कैटेगरी जर्नल, ए स्टार कैटेगरी, बी कैटेगरी में छापना है पेपर, तो आपको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्केल्स हैं वही आप उठाओगे और वही यूज करोगे, तभी आपका पेपर गुड जर्नल में छपेगा. ये फॉर श्योर गारंटी है ना? अगर आप उसको ऐसे ही अपने आप से डिजाइन कर दोगे, लेट्स से मैंने पर्सनल फैक्टर्स लिए अपने आप से स्टेटमेंट्स डिजाइन कर दी है ना, तो वो पेपर अच्छे जर्नल में नहीं छप पाएगा. और आप देखो, इसको मैंने मेजर्स को, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है, तो इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मैंने सेटिस्फैक्शन विद लाइफ स्केल का कौन सा स्केल उठाया है, किस बंदे का उठाया है ना, एंड फैमिली सेटिस्फैक्शन में कौन सा उठाया है, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल एंड इफेक्टिव कमिटमेंट में किसका उठाया. सो दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी मेंशन इनटू द पेपर. राइट, सो लेट्स प्रोसीड अहेड विद दिस. नाउ अब हमने देखना है कि इसको रन कैसे करेंगे हम. How we are going to run it on the SPSS, right? So let's move to that point. Let me open up my file now. It will take a minute. ये थोड़ा टाइम लेता है खुलने में. Let me open this. ये थोड़ा सा टाइम लेता है SPSS जब खुलता है ना, बिकॉज ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर होता है, सो इट टेक्स टाइम, राइट? तो लेट्स मूव टू दिस. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसको 4 फैक्टर्स में डिवाइड किया है ना. IV1 के फैक्टर्स हैं, IV से रिप्रेजेंट हो रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड फैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है DV1, DV2, DV3, DV4. थर्ड फैक्टर MV1, MV2, MV3, MV4, MV5. इसी तरह से फोर्थ फैक्टर 1, 2, 3 एंड 4. 4 फैक्टर्स हैं ये. तो मैंने इनकी बाइफर्केशन कैसे करी, IV, DV, MV और MO. ठीक है, तो यहाँ पे ये लोगों के रिस्पॉन्सेज हैं. यहाँ पे दिस इज द वेरिएबल व्यू एंड दिस इज योर डेटा व्यू, राइट? तो यहाँ पे ये लोगों के रिस्पॉन्सेज हैं, तो मैंने इसको ऑलरेडी फीड इन किया हुआ है. ठीक है, तो इसको देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टू यूज दिस. अच्छा, ये मैंने इसलिए डिफरेंशिएट किया IV1, DV1, ताकि जब हम रिजल्ट्स निकालें तो मुझे पता चल जाए कि ये स्टेटमेंट्स, वैसे ये सारी जो 5 स्टेटमेंट्स हैं ये फर्स्ट फैक्टर की स्टेटमेंट्स हैं, ये उनके रिस्पॉन्सेज हैं. जो सेकंड स्टेटमेंट्स है मेरी DV वाली, वो सेकंड फैक्टर की है, थर्ड फैक्टर की, फोर्थ फैक्टर की. तो लेट्स मूव टू दिस. यहां तक किसी को प्रॉब्लम? ओके, तो लेट्स मूव टू द हाउ डू वी डू इट. गो टू एनालाइज, dimension reduction and factor. What are the steps? Go to analyze, dimension reduction and factor.
Click on to that. Select all the factors or select all the statements. Right. तो go to descriptive. आप लिखते रहिए प्लीज ये. क्लिक ऑन KMO एंड बार्टलेस टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी. मैं अभी आपको बताऊंगी इन सब का क्या मतलब है. अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं अभी आपको ये बताती रहती हूँ. प्लीज नोट डाउन दिस स्टेप्स. लेट मी डू दिस अगेन. गो टू एनालाइज, dimension reduction and factor. Select all the factors. First descriptive आपको दिख रहा है हमें. उसमें आपने करना है KMO and Bartlett's test of sphericity को क्लिक. लास्ट ऑप्शन ऑलमोस्ट. कंटिन्यू. सेकंड आपने करना है एक्सट्रैक्शन. ओके, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट के अंदर लिखा है फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स. फैक्टर्स टू एक्सट्रैक्ट. मैं चाहती हूँ कि 4 फैक्टर्स को ये एक्सट्रैक्ट करे. ये अपने आप से, अगर इसको आप ब्लैंक छोड़ देते हो ना, तो ये कुछ भी कर सकता है. तो मैं इसको नॉर्मली क्या करती हूँ, जितने फैक्टर्स है ना, यहाँ पे 4 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं ना हमारे, तो मैं इसको 4 में पहले ही डिवाइड कर देती हूँ. राइट. कंटिन्यू. रोटेशन. There are main 2 types of rotation, Varimax and Promax. So click on Varimax and continue. Last is options. Options में एक है इसमें suppress small coefficients. मैं बताऊंगी इसका क्या मतलब है. इसमें ना यहाँ पे 0.5 डालते हैं हम. मैं बताती हूँ कैसे. continue and okay. So let's understand the results now. मैं इस results को दूसरे वाली पेज के ऊपर ले जाती हूँ. Let me open this. So what is the results? This is the first table. Right. This is the first table. तो इसके अंदर हमने क्या देखना है? 2 चीजें, KMO and Bartlett's test. So what are the 2 things that is important here? इस पे हमने देखना है ये केजरमेयर. केजरमेयर ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमने जितना सैंपल लिया है, जो सैंपल साइज है हमारा, जो हमने अभी जो सैंपल साइज लिया है, कि वो एडिक्वेट है कि नहीं है, जो केजरमेयर टेस्ट है. राइट. तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसके अंदर एनालाइज करने की? केजरमेयर ऑल्किन. ये KMO टेस्ट आपको क्या बताता है कि जो आपने सैंपल साइज लिया है वो एडिक्वेट है कि नहीं है. ठीक है. और अगर ये बिलो 0.5 होती है वैल्यू, तो इसका मतलब हमारा जो सैंपल साइज है दैट इज इनएप्रोप्रिएट. अगर ये वैल्यू लेस देन 0.05 होती है, so it means our sample is inadequate. We need to increase the sample size. So this is the first thing that we have to observe. What is the second thing? Next is Bartlett's test of sphericity. So ये क्या indicate करता है हमारा? ये करता है कि हाँ, कि जितनी भी स्टेटमेंट्स थी, प्लीज ये अंडरस्टैंड करें. फैक्टर्स 4 थे. व्हाट आर द फैक्टर्स? फर्स्ट वाज ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल फैक्टर्स. सेकंड वाज फैमिली सपोर्ट. थर्ड वाज ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट एंड फोर्थ वाज अफेक्टिव कमिटमेंट. ये फैक्टर्स थे, उसकी स्टेटमेंट्स थी. तो अब वो क्या बता रहा है आपको? बार्टलेट्स टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी क्या बता रहा है कि जो हमारी सैंपल साइज, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. मतलब कि जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं, जो हमने स्टेटमेंट्स ली हैं, वो हमारी दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द सैंपल. हमने क्या लिया है, ये जो हमने स्टेटमेंट्स के ये सॉल्यूशन ये डाला है, दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर. So what is the second test? The second test is the Bartlett's test of sphericity. तो ये दोनों वैल्यूज, ये वैल्यू अगर 0.5 से लेस होगी तभी आपको आगे बढ़ना है. This value has to be less than either 0.1 or 0.05. Right? तो यहाँ पर ये है 0.05 से कम है ये. So it means our sample is adequate and the statements are correlated to each other. So we can move ahead with this. So what is the next thing? So this is the commonalities. Let me take it there. This is the next table. इसमें बहुत सारे tables हैं जो हमें हर table को explain करना है. Okay, ये commonalities आपको क्या बता रही है?
Let's move to this. ओके इसका ये मतलब होता है कॉमनैलिटीज ओके ये बता रहा है कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी IV1 ये कितना एक्सप्लेन कर पा रही है फैक्टर को, फर्स्ट फैक्टर को. व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर? दैट इज अ पर्सनल फैक्टर. वो पर्सनल फैक्टर को कितना एक्सप्लेन कर पा रही है? 80%. सेकेंड वाली स्टेटमेंट 85%, 86, 85 ये देख रहे हो आप. तो दिस इज ऑलमोस्ट मोर देन 5. सारी की सारी 5 हैं. ये इंडिविजुअल बेसिस पे इतना एक्सप्लेन कर पा रही है पर्सनल फैक्टर को. ये इतना, ये इतना, ये इतना. मतलब हर स्टेटमेंट की आपको ये चेक करना है कॉमनैलिटीज, राइट. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे जितनी भी स्टेटमेंट्स थी सबकी वैल्यू 0.5 से ज्यादा है. सो वी विल नॉट बी डिलीटिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट. सो इट मींस ऑल द स्टेटमेंट्स आर फिटिंग वेल टू द मॉडल. सो यहाँ तक अगर हमारा काम हो जाता है, सो वी मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट वन. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यस मैम स्टेप्स फिर से एक्सप्लेन कर दो. अच्छा स्टेप्स में सबसे पहले आपको देखना है इसके अंदर, दिस इज द फर्स्ट टेबल, राइट. KMO एंड बार्टलेस टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी. सो जो KMO है वो बताता है, ये जो फर्स्ट 8.858 जो है ये क्या बता रहा है आपको कि जो आपने सैंपल साइज लिया है, आपका हमारा जितना भी सैंपल साइज है वो एडिक्वेट है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. और इसकी वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए? 0.5 to 1 के बीच में होनी चाहिए. अगर ये 0.5 to 1 के बीच में है तो इट मींस आवर सैंपल इज एडिक्वेट. अगर ये 0.5 से वैल्यू कम आती है ये वाली, तो हमें दोबारा से और सैंपल भरवाना पड़ेगा. ये वाली वैल्यू, राइट. दिस वैल्यू हैज टू बी मोर देन 0.5. ये लिखा हुआ ना यहाँ पर, ये भी साथ में आई विल शेयर इट विद यू. ये यहाँ पर बता रहा है कि आपको कितनी वैल्यू होनी चाहिए, है ना. ये सारा आपको इसमें मिल जाएगा जो मैं ये आपसे शेयर करूंगी. सेकंड, बार्टलेस टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी क्या बताता है कि ये कितना होना चाहिए? ये 0.5 या 0.05. ये वाली जो वैल्यू है सिग्निफिकेंट वैल्यू, P वैल्यू, दिस P वैल्यू हैज टू बी लेस देन 0.05. तो ये उससे कम है. तो इसका ये मतलब है कि जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी आपस में कोरिलेटेड है. तो अगर वो आपस में कोरिलेटेड है, सो यू कैन प्रोसीड अहेड फॉर द नेक्स्ट टेबल, राइट. अगर ये नहीं होती तो यहीं पे स्टॉप लग जाता और आप इस पे फैक्टर एनालिसिस नहीं लगा सकते हो. ठीक है. सो नेक्स्ट है आपका कॉमनैलिटीज. तो कॉमनैलिटीज ये नेक्स्ट टेबल है. वो ये बता रहा है कि हर स्टेटमेंट, ये जैसे आपकी ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली, ये फैक्टर को कितना एक्सप्लेन कर पा रही है. तो कितना कर पा रही है? ये कर पा रही है 80%. सेकेंड स्टेटमेंट कितना कर पा रही है? 85, 83, 84 ऐसे. ठीक है. तो ये वैल्यू आपने देखनी है कि एक्सट्रैक्टेड ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है, इट शुड नॉट बी लेस देन 0.5. अगर 0.5 से लेस है तो आपको उसमें वो डिलीट करनी पड़ती है. आई होप इट इज क्लियर. यस मैम. है ना. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेबल. अगर ये सब ठीक है हमारा, उसके बाद हमें नेक्स्ट टेबल पे जाना है, ये वाले पे. मैम हाँ जी. मैम अगर कॉमनैलिटीज की वैल्यू 0.5 से कम है तो हमें वो स्टेटमेंट डिलीट करना होगा. हाँ मतलब कर दो तो बेटर रहता है, क्योंकि फिर रिजल्ट्स खराब भी हो सकते हैं. तो अगर आप डिलीट कर दो, नीचे भी देखना होता है एक बार हमें. मैं आपको बताती हूँ एक चीज और नीचे देखनी होती है, फिर उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपको इन टोटलिटी में कैसे जाना है. मैं अभी Okay, नीचे एक और है, एक और तो वो जो नीचे है. स्टेटमेंट है वो फ्रॉम द बिगनिंग डिलीट हो जाएगा, है ना. हाँ 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 हाँ, वो Okay. स्टेटमेंट आप नहीं लोगे. हाँ. ओके मैम. So this is the next table that says talks about the total variance explained. Right, this is the next table. ये अब हम देख सकते हैं इसमें ये क्या से है. एक मिनट, let me take it to the next page. अब आप देखिए ये आपने जो आइगन वैल्यूज जो हैं
जहां पर ये देखो इसने 4 फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट किया, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये वाला जो टेबल है वो ये दिखा रहा है कि जहां पर ये वाली जो आइगन वैल्यू है, ये जहां पर 1 से ज्यादा है, ये यहाँ तक 1 से ज्यादा है, 4th फैक्टर तक, इसका मतलब इसने कितने फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट किया है, 4। ऑब्वियसली मैंने वैसे वहां दे भी दिया था, बट इसने फिर क्या मतलब है, 4 फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट किया है। आइगन वैल्यू 1 से ज्यादा जहां तक होती है उतने फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट किए। लुक एट दिस, 5th फैक्टर, 6th फैक्टर, 7th, इन सब में ये कितना जा रहा है, लेस देन 1, है ना। एंड फर्स्ट 4 फैक्टर्स में ये क्या जा रहा है, मोर देन 1। तो इसका मतलब इसने 4 फैक्टर को एक्सट्रैक्ट किया है। और क्यूमुलेटिव मतलब जो हमने ऊपर टेबल देखा था, इसके अंदर हर स्टेटमेंट अपने फैक्टर को कितना एक्सप्लेन कर रही है, 80%, 85। यहाँ ये इंडिविजुअल देखी थी स्टेटमेंट्स, हर इंडिविजुअल स्टेटमेंट मतलब आपकी जितनी भी स्टेटमेंट थी, ये वाली स्टेटमेंट, जितनी भी स्टेटमेंट थी, अलग अलग कितना कर रही थी। अब ये सारी स्टेटमेंट्स को अगर आप मिला दो तो ये टोटैलिटी में कितना एक्सप्लेन कर रही है। सो ये कितना एक्सप्लेन कर रही है, 74%। दिस इज क्यूमुलेटिव टोटल, है ना। जो फर्स्ट फैक्टर है वो कितना कर रहा है, 22%, 41, 58, और सॉरी नहीं टोटल है ये, सॉरी, दिस इज द टोटल। मतलब इन टोटैलिटी में फोर जो फैक्टर्स हैं वो टोटल मॉडल को कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं, 74%। सो ये अगर वैल्यू 50-60 से ज्यादा है, ये अगर 60% से ज्यादा है, तो इसका मतलब वी कैन प्रोसीड दिस। नहीं तो हम इसको फैक्टर एनालिसिस जो हमने रन किया है वो इट वाज नॉट वर्थ इट, बट नाउ दिस इज वर्थ इट, है ना। तो दिस इज द नेक्स्ट टेबल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेबल। कंपोनेंट मैट्रिक्स नहीं हमने देखना, रोटेटेड मैट्रिक्स अब इसमें देखेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। मैम वन क्वेश्चन। हाँ जी, मैम जो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जो फैक्टर्स एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो हम डिलीट करेंगे उनको? हाँ बिल्कुल डिलीट करोगे आपसे, लेकिन आप देखोगे कैसे, ये मेन टेबल होता है। अब मैं आपको वही दिखा रही हूँ। ऊपर तो जो हमने देखा था कॉमनैलिटीज वाला, वहां से भी कुछ इंडिकेशन मिलता है ये वाले टेबल से। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेबल दैट शोज अबाउट इट, है ना, इससे भी कुछ पता चलता है। और इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट टेबल हमारा ये है, रोटेटेड कॉम्पोनेंट मैट्रिक्स। इसको एक पेज पे ला देती हूँ, 1 मिनट, ये आ गया। अब ये टेबल, अब आप इसको ध्यान से देखो। नाउ ये फर्स्ट फैक्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये देख रहे हो आप, इसने 4 फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया और यहाँ पे स्टेटमेंट के नंबर लिख दिए, IV1, 2, 3, 4, DV, MV, MOI, ये सारे यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं और ये फैक्टर्स हैं। आर यू गेटिंग मी? मतलब क्या है इस बात का? इस बात का ये मतलब है, लेट मी टेक यू ऊपर लेके जाती हूँ। इसका ये मतलब है, हमने ये देखा था ना, ये पर्सनल फैक्टर, लेट मी गिव इट नंबर 1, let me give it number 1, let me give this as number 2, है ना, और ये इसके स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स से, है ना। तो अब आपको ये कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, ये अब ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है ये चीज, इसको ध्यान से समझ लेना। दिस इज फर्स्ट फैक्टर, लेट्स से दिस इज पर्सनल फैक्टर, ये सपोज करो पर्सनल फैक्टर है ना। सेकंड फैक्टर क्या था हमारा, दैट वाज फैमिली सपोर्ट, मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ। थर्ड फैक्टर था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, राइट। एंड फोर्थ फैक्टर क्या था, अफेक्टिव कमिटमेंट, राइट। ये हमारे 4 फैक्टर्स थे। अब आपने ये देखना है कि ये जो फैक्टर्स लोड हुए हैं, आप देख रहे हो, ये फैक्टर जो फर्स्ट फैक्टर है पर्सनल फैक्टर, उसकी सारी स्टेटमेंट इसके ऊपर लोड हो गई है आराम से, बहुत आराम से, ये आप देख पा रहे हो एक बार। सेकंड की तो ये देख पा रहे हैं कि ये जो फर्स्ट फैक्टर है पर्सनल फैक्टर, उस पे उसी की 4 स्टेटमेंट्स लोड हुई है। सेकंड फैक्टर है अफेक्टिव कमिटमेंट, ये जो भी था, ये अफेक्टिव कमिटमेंट नहीं है, ये सेकंड फैक्टर है ना ये, तो ये किस पे लोड हुआ, इसके ऊपर। थर्ड, पूरी की पूरी सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेटली लोड हुई है, देख रहे हो आप ये चीज, कैन यू सी टू इट।
जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं सारी उसी के फैक्टर पे लोड हुई है, मतलब ये इधर उधर नहीं जा रही। कई बार ऐसे भी होता है, अगर आपका ये रिजल्ट्स ठीक नहीं आते ना, तो इट कैन बी लाइक दिस, लेट मी रिमूव इट हेयर। तो ये क्या दिखा रहा है कि देखो एमवी की जितनी स्टेटमेंट्स हैं, अभी हमारे रिजल्ट्स में क्या दिखा रहा था, परफेक्टली अपलोड हो रही थी, है ना, ये यहाँ पर था, एक ही फैक्टर पे अपलोड हो रही थी, लेकिन लेट्स से रिजल्ट आता है यहाँ पर अपलोड हुई है ना, तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर हमारी। इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस। मैं एक मिनट तो आप ये देख सकते हो कि ये सारी स्टेटमेंट्स उन्हीं फैक्टर पे लोड हो रही है जिस पे होना चाहिए। ऐसे भी तो हो सकता था कि ये पॉइंट, सॉरी ये नहीं, इधर ये 0.718 इधर लोड हो जाता इंस्टेड ऑफ दिस। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो थर्ड फैक्टर है, ये जो स्टेटमेंट है, ये सारी स्टेटमेंट्स तो इसके ऊपर लोड हो रही है, लेकिन एक स्टेटमेंट इधर लोड हो रही है। तो इसका मतलब इस जो ये वाला फैक्टर था, फोर्थ फैक्टर था, उसकी एक स्टेटमेंट यहाँ लोड हो रही है, तो ये कोई प्रॉब्लम कर रहा है क्रिएट। आर यू गेटिंग मी एट दिस? ये आप समझ रहे हो ये चीज? मतलब हमने ये कहा, नहीं समझ में आ रहा, मैं बताती हूँ। मैंने ये कहा कि ये तीन स्टेटमेंट इस वाले फैक्टर पे ही आनी चाहिए, फैक्टर एनालिसिस के थ्रू, है ना। अफेक्टिव कमिटमेंट की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो इसी पे लोड होनी चाहिए। बट अब आप ये देखो ना कि हो सकता है जो आपने डेटा फिल किया तो उसके अंदर क्या हुआ, ये स्टेटमेंट इधर से उधर हो गई, कि एक जो स्टेटमेंट थी वो इधर लोड होने की बजाय, ये तो सारे के सारे एक ही उसके ब्रांच के है ना, DV1 लेट्स से ब्रांचेस, लेट्स से केमिकल ब्रांच, तो केमिकल ब्रांच के बच्चे सारे एक ही तरफ आने चाहिए, लेट्स से इधर आ गए, ये इसमें आ गया, तो ये दूसरे वाले में जंप मार गया ना। आर यू गेटिंग मी एट दिस? ये जो फैक्टर एनालिसिस है वो उसका क्या मतलब होता है कि हर फैक्टर में लोड होनी चाहिए उसकी स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके डेटा में या तो कोई प्रॉब्लम है जो आपने डेटा फिल किया है, या फिर ये भी हो सकता है कोई जो स्टेटमेंट है जैसे MV1, तो वो इधर इधर उसका कोरिलेशन ज्यादा है टू DVs के साथ। ये बात सबको समझ आ रही है? ये सुन, वेरिएबल कैसे डिसाइड करेंगे हम? क्या वेरिएबल कैसे? जैसे ये वेरिएबल्स आपने लिखे हैं ना स्टार्टिंग में, जब ये आपने फैक्टर एनालिसिस लगाया था, स्टार्टिंग में रन किया था जब, हाँ, तो तो ये वो जो तो आप मैंने, कोरिलेशन का वो कैसे डिसाइड किए थे? मतलब आपने V1 V2 V3 जो भी लिखा हुआ है, ये सब ये एक इसको स्टार्टिंग में। नाम दिया ना मैंने, इनको नाम दिए, बस कुछ भी नहीं। दिस इज, ये देखो ना, A1 इस स्टेटमेंट को नाम दिया, A2 इसका, A3 A4 A5। लेट्स से ये केमिकल डिपार्टमेंट है, तो ये केमिकल डिपार्टमेंट के सारे बच्चे एक ही तरफ आने चाहिए ना, ये पर्सनल फैक्टर है, ये इसके बेसिस पे दिया ना मैंने, A1 A2 A3 A4 A5, इसी की स्टेटमेंट है ना पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर की स्टेटमेंट फैमिली फैक्टर्स में तो नहीं जा सकती ना, ये आ रहा है समझ? यस मैम, पर वो जो एक्सेल जो अपने एफपीएसएस शीट में जो लिखे थे वहाँ वेरिएबल्स जो भी डाले थे आपने, जो आप पहले शीट दिखा रहे थे, हाँ, वो कैसे किए डिसाइड? हाँ, ये वाले ये V1 हमने, V2 इसके पे लिखा है ना D। हाँ, तो स्टेटमेंट ये हमने भरवाए ना, मैंने ये क्वेश्चनर दिया लोगों को भरने के लिए, ये कहाँ गया, हाँ, ये मैंने क्वेश्चनर दिया ना लोगों को भरने के लिए, क्वेश्चनर दिया, उसमें उस बच्चे ने ये फिल करा, और फिर उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर डाला। ये एक एक रिस्पोंडेंट है, ये फर्स्ट जो रिस्पोंडेंट है, मैंने उससे पूछा आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, तो उसने बोला न्यूट्रल, ये उसका रिस्पॉन्स है ये। और ये क्वेश्चंस, ये जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उसके पर्सनल फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एक रिस्पोंडेंट है, ये जो अब मैंने सिलेक्ट किया है, दिस इज वन रिस्पोंडेंट, दिस इज सेकंड रिस्पोंडेंट, दिस इज थर्ड रिस्पोंडेंट, ये उनके रिस्पॉन्सेज हैं। तो ये मैंने उससे पूछा, क्वेश्चंस पूछे 1 to 5 पर्सनल फैक्टर से रिलेटेड, तो उसने लिकर्ट स्केल पे ये आंसर किया। सेकंड जो DV1 क्वेश्चंस थे वो उसने ये ऐसे रिस्पॉन्ड दिया, MV1 के क्वेश्चंस को ये रिस्पॉन्ड दिया, MOI के ये। तो इस तरह से ये पूरा पूरा का पूरा ये जो भरा है, ये उस बेसिस पे भरा है, ये सारा बहुत मेहनत का काम है ये, इट इज नॉट दैट इजी। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, तो दिस इज हाउ यू गेट द रिजल्ट्स।
तो what I'm trying to tell you is factor analysis is a little tough. It's मतलब थोड़ा सा मेहनत चाहिए होती है इसमें आपको। ये जो आपने डेटा फीड किया है, it has to be cleaned as well. ये डेटा को क्लीनिंग की बहुत जरूरत होती है इन द सेंस कि आपको देखना पड़ता है कि एक रिस्पोंडेंट किस तरह के आंसर कर रहा है और उसी तरह के आंसर्स होने चाहिए। ये ना वो ज्यादा ऊपर नीचे तो कई बार गलत भी भर देता है, तो वो आप अपने आप से भी ठीक कर देते हो, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एज डेटा क्लीनिंग एंड दिस इज व्हाट दिस इज एंड दिस इज द लास्ट टेबल। यहाँ पे मेरा बहुत बढ़िया फिट हो रहा है मेरा जो मॉडल है, एंड दिस इज द होल अबाउट द फैक्टर एनालिसिस। और कोई क्वेश्चंस? दिस इज Yes, ऑल ma'am. अबाउट द Ma'am, I हाँ have जी, a question. So, हाँ जी। ma'am, this factor analysis, if one of the factor is out of the way, like तो आपने डिलीट क्वेश्चन आप बताया डिलीट कर सकते हो, आप डिलीट कर दो उसे। है ना, अगर डिलीट कर सकते हैं। हाँ डिलीट भी कर सकते हो, और आप ये भी कोशिश कर सकते हो कि जो रिस्पॉन्सेज है उसकी डेटा क्लीनिंग करें आप, कि आप ये देखें कि रिस्पोंडेंट ने कुछ गलत तो नहीं भर दिए हैं। ये आपको फिर डेटा क्लीनिंग वगैरह भी करनी पड़ती है अपनी डेटा की उसी हिसाब से। तो मैम मतलब ये बेसिकली ये जो हम एनालिसिस करेंगे ये हमें डेटा क्लीनिंग में बहुत हेल्प करेगा। हाँ बिल्कुल, डेटा क्लीनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस। ओके मैम। काई स्क्वायर ना बेसिकली आपका, एक मिनट, ओके ये हम कर सकते हैं। लेवल ऑफ फेमिलियरिटी अगर काई स्क्वायर करना है तो इसके अंदर ना आई टोल्ड यू द वेरिएबल्स आर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। The variables are categorical variables. Both the variables are categorical. Let's say level of familiarity with the internet. उसको आपने दे दिया लो familiarity, मीडियम और हाई। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता सकती हूँ कि किस तरह से है ये। दिस इज योर काई स्क्वायर टेस्ट। कर लेते हैं, छोटा सा टेस्ट है ना। तो हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरस्टैंड the relationship of teachers of different stream of teachers with their internet level, with their knowledge of internet. मैम स्क्रीन इज स्टक, आई कांट सी एनीथिंग। सबको ऐसे दिखाई दे रहा है? आप एक बार वो करो, No, लॉग ma'am. ऑफ करके लॉग इन Showing करो। अभी अभी शो हो रहा है। यस मैम। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? टू अंडरस्टैंड, दो वेरिएबल्स हैं, लेवल ऑफ फेमिलियरिटी with the internet and stream of teachers. Let's say साइंस बैकग्राउंड के टीचर्स को आपने लिया है सैंपल साइज में, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज, ठीक है? तो और यहाँ पे लेवल ऑफ फेमिलियरिटी विद द इंटरनेट, हाई लेवल, मीडियम लेवल एंड लो लेवल। ये समझ पा रहे हो क्वेश्चन? आप ये चेक करना चाहते हो क्या कोई इसमें सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है? टू अंडरस्टैंड द significant, yeah, is there any significant relationship? Is there any significant relationship? Is there any significant relationship of different stream of teacher with the knowledge of the internet? तो अब आप ये देख सकते हो काई स्क्वायर आपका कहाँ लगता है? जब दोनों वेरिएबल्स कैटेगोरिकल हो, तो दोनों के दोनों नॉमिनल है ना? बोथ द वेरिएबल्स आर नॉमिनल। तो उस केस में आप क्या करते हो? यू अप्लाई द काई स्क्वायर टेस्ट। तो कैसे लगाओगे? इसके अंदर जाओगे एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, फ्रीक्वेंसी, एक मिनट, these are the two variables, statistics, एक मिनट ये नहीं है, एक मिनट दो मेरे को बस। go to analyze, descriptive, ओहो वैसे ही एक में लगता था।
नहीं, क्रॉस स्टेप्स एक आएगा, रो अब आएगा, हाँ, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एग्जैक्ट, ये रखा इसका, हाँ ओके, ये इधर लगेगा। ये कैसे लगेगा, मैं दोबारा बता देती हूँ, 1 मिनट। ये गो टू एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव एंड क्रॉस टैब्स। ये क्रॉस टैब्स दिख रहे हैं यहाँ पे, क्रॉस टैब एक को रो में ले लो, एक को कॉलम, और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में एक यहाँ पर है क्वाई स्क्वायर, ठीक है, कॉन्टिन्यू एंड ओके। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो ये वाली वैल्यूज आपके पास। क्रॉस टैब्स का मतलब होता है, दिस इज द टेबल दैट यू हैव गॉट फॉर द क्रॉस टैब्स। क्रॉस टैब्स का मतलब होता है, एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको, ये आपके पास रिजल्ट आया, इसका मतलब रिलेशनशिप दिखा रहा है। ह्यूमैनिटीज की जो टीचर्स हैं, एक टीचर ने बोला लो फैमिलैरिटी विद इंटरनेट है, 2 ने बोला मीडियम है, और 8 ने बोला हाई है। ये इस तरह से, दिस इज अ क्रॉस टैब टेबल, है ना, क्रॉस टैब टेबल। इस टेबल को क्या बोलते हैं, क्रॉस टैब टेबल, है ना। और रिजल्ट्स आपके काई स्क्वायर टेस्ट वाले टेबल में है। व्हाट इज द रिजल्ट्स दैट सिग्निफाइज हियर, दिस इज द टेबल फॉर द रिजल्ट। इसके अंदर अब आपको ये वाला देखना है, काई स्क्वायर टेस्ट के सिग्निफी वैल्यू, ये देख रहे हो आप 0.32, लेट मी डार्क इट हियर। ये जो वैल्यू है 0.232 आई है सिग्निफिकेंट वैल्यू। काई स्क्वायर पियर्सन्स जो काई स्क्वायर है उसके वैल्यू अगेंस्ट कितनी आ रही है, 0.232। ये कितनी आ रही है, पी वैल्यू से लेस मोर देन, पी वैल्यू 0.05 से मोर देन है, इट मींस null hypothesis is accepted. It means there is no significant difference between the level of familiarity and stream of teachers. So this is your chi-square test. This is the totality of the chi-square test. I hope it is clear to all.